students, myself Swaranjit Kaur, maths teacher from the Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. In the 10th class, students, we are doing the chapter 3rd. In the 3rd chapter, previously we have discussed the exercise 3.4, that is the elimination method. Today we will discuss about the statement sum. मीन्स स्टेटमेंट्स को हम किस तरीके से पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे, बाद में तो बिल्कुल सिंपल है कि आपने उनको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर देना है। आज के लेक्चर में मैं आपको इनको सॉल्व करना बताऊंगी कि स्टेटमेंट से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे। आपकी बुक का 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, if we will added 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, if fraction reduced to 1, so that means in this question we must have the fraction, and fraction is in which form, numerator over denominator. In this question I have taken x as the numerator and y as the denominator. So according to question, what is given to us, we have given 1 is added to the numerator, means x plus 1, and 1 is subtracted from the denominator, that means x minus 1. Then the answer is 1. So solve it, that will becomes x plus y, 1 is equals to y minus 1. Take x and y in left hand side and the constant into the right hand side. So you have x minus y is equals to minus of 2. That means that is your first linear equation from the statement. And in the second linear equation, what is given to us? It becomes 1 over 2. Means your answer is 1 over 2. If means if we add 1 to the denominator, means अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस कर देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 over 2. मीन्स अब न्यूमिनेटर के साथ कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो और आपकी फ्रैक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 over 2. सो सॉल्व इट, दैट विल बिकम्स 2x is equals to y plus 1. Take y on the left hand side, so that is 1. That is the second linear equation. Now solve this linear equation by the elimination method. You will got the answer. So solve it by yourself because you know how to solve by the elimination method. In the next question, same as it is in the next question, I will told you how to prepare the pair of linear equation. Also I will give you the solved assignment. You can see question number 2. What is given to us? 5 years ago. बच्चे एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और आपको इसमें प्रॉब्लम आती है कि एजेस को लेना किस तरीके से है। 5 years ago मीन्स 5 साल पहले। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसमें जो भी आपको दो नेम गिवन होंगे, ठीक है, उन दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लो। सो लेट अस सपोज Nouri's present age is equals to x years. Means अब उसकी उम्र कितनी है, x years है। Same as it is, let us suppose Sonu's age y years। ठीक है, हमने दोनों की x और y एज सपोज कर ली है। अब क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बच्चे अगर फर्स्ट आपको वर्ड दिया है 5 years ago, मीन्स 5 years ago का क्या मीनिंग है कि 5 साल पहले। ऑब्वियसली अगर 5 साल पहले बोला है तो दोनों की एज 5 years क्या होएगी, लेस। सो राइट x minus 5, इस साइड क्या लिख लो, y minus 5। ठीक है, मतलब बैलेंस किस तरीके से करना है, क्विक मेथड है ये। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, सबसे पहले तो 5 साल पहले क्या होएगा, दोनों की एज 5 years कम हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपकी एज अब 14 years है तो 5 साल पहले कितनी होएगी, 9 years। मीन्स आप 5 ही माइनस करोगे उसमें से। सेम एज इट इज नूरी की एज क्या हो जाएगी, x minus 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y minus 5। नाउ व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज क्या है, सोनू की एज का थ्राइस है। मीन्स अगर हम सोनू की एज को 5 years पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू द नूरीज एज 5 years ago. So solve it.
that is x minus 5 is equals to 3y minus 15. Take y on the right side, left side, and constant on the right side. So your first equation is x plus 3y is equals to minus of 10. Now what is the next? 10 years later. अब later का क्या मीनिंग है? 10 साल बाद. 10 साल बाद क्या होएगा? ऑब्वियसली 10 साल बाद दोनों की एज प्रेजेंट से इससे क्या हो जाएगा? 10 ईयर्स ज्यादा हो जाएगा. अब क्या है? 10 ईयर्स अगर ज्यादा है और भी साथ में कुछ गिवन है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. अब नूरी सोनू की एज का क्या है? ट्वाइस है. ट्वाइस है मीन्स 2 के साथ मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी x प्लस 10 2y प्लस 20. सो दिस विल बिकम्स, यहाँ पे माइनस आएगा, x minus 2y 20 minus of 10. So that is x minus 2y is equals to 10. That is the second equation. Now solve these two equations. You will find out the value of the x. And what will be your x? X will be Noori's age. And what will be the y? Y is the Sonu's age. और बच्चे इस क्वेश्चन में और भी एक चीज होएगी, जो आपकी एक्स वाई की वैल्यू होएगी ना, दैट कांट बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं आएगी. क्यों नहीं नेगेटिव आएगी? क्योंकि किसी की भी एज बच्चे नेगेटिव में नहीं होती है. दैट विल बी इन द पॉजिटिव. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड आप अपने आप करना. क्वेश्चन नंबर 4 इज the fourth question is given to us. मीना went to bank to withdraw 2000. मीना क्या बैंक में गई कितने रुपए निकालने के लिए? 2000. She asked the cashier to give her 50 rupees note and 100 rupees note only. मतलब उसने क्या बोला कि मुझे या तो सिर्फ 50 rupees के नोट दो या 100 rupees के नोट दो. ठीक है, और निकालने उसने कितने हैं? 2000 ही निकालना है. Then she got the 25 notes in all. ठीक है, सो इसमें क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे 2 टाइप्स के नोट्स की ही बात हुई है ना. सो लेट अस सपोज 25 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू x एंड 100 रुपीज के नोट उसको कितने मिल रहे हैं? y. ठीक है, 25 के नोट्स उसको कितने मिल रहे हैं? x और 100 के y. ठीक है, और सॉरी 50 के नोट्स उसको कितने मिल रहे हैं? x और 100 के y. एंड टोटल शी गॉट द 25 नोट्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल शी गॉट द नोट्स 25 मीन्स टोटल नोट्स तो बच्चे x प्लस y ही आएगा. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ व्हाट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन? दे आर सेइंग दैट she asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note only and she got the 2000. अगर अब मैं 50 रुपीज वाले नोट्स को 50 के साथ मल्टीप्लाई और 100 रुपीज वाले नोट्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो टोटल मनी आ जाएगी. दैट इज 2000. दैट इज योर सेकेंड स्टेटमेंट. नाउ सॉल्व दिस बाय द एलिमिनेशन मेथड. सेम एज इट इज इसका आपका जो थर्ड पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा. बट वैसे मैंने इनको सॉल्व करके आपको PDF बना के दे दिया है, वहाँ से देख लेना. ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.